We request Ms. Chavi Ravi, Principal, Agarwal Vidya Vihar School, the driving force behind our school's success, to take the stage and guide us to the Annual Report 2022-23. A good education is the foundation for a better future. Honorable Chief Guest, dignified dignitaries, dear parents and well-wishers of the dais, a very good evening and warm welcome to one and all present here. My hearty welcome to Honorable Chief Guest, Srimati Shalini Agrawal, Municipal Commissioner of Surat Municipal Corporation. On this very special and marked occasion of Annual Day celebration of Agarwal Vidya Vihar, I take this privilege to present the annual school report. The academic year 2022-23 commenced on 4th April 2022. Coming to competitive exams, our students are given the opportunity to participate in various competitive exams organized at national level, and the students are given the practice in the school itself. A few to list are NTSA, that is National Talent Search Examination, SOF, that is Science Olympiad Foundation, Assessment of Scholastic Skills through Educational Testing, that is ASSET. The club activities and the co-curricular activities are conducted on every alternate Saturday to develop and improve self-awareness and fulfilling aspiration amongst the students. A zero period in the beginning of the day is utilized very effectively for various purposes like remedial classes, preparation of competitive exams, preparation of cultural programs, enhancing communication skills, etc., and many more. The celebrations conducted under the CBSE banner are International Yoga Day, Hindi Pakhwada, Sanskrit Saptah, etc. The celebrations conducted under the school banner are Independence Day, Republic Day, Janmashtami, Teachers Day, Winter Carnival, Deepavali, and many more. The investiture ceremony was scheduled on 8th July 2022, wherein the office bearers of the Students' Council were vested with the responsibilities. Sports meet for the secondary and senior secondary section was scheduled on 15th and 17th December 2022, while that of pre-primary and primary section took place on 16th December 2022. Tours and excursions. Excursions increase students' knowledge and understanding of a subject and add realism to the topic of study. The students of Junior KG to Class 1 enjoyed the rides at Shorts. Classes 2 and 3 spent their day at Modi Resort. Classes 4th and 5th had an adventurous trip to Dev's Camp. Classes 6th and 7th experienced new themes at Imagica. Classes 8th and 9th explored Kutch. Class 11th went on an educational trip to Ahmedabad. Great teachers help create great students. This is all about teachers' trainings and workshops. Please pay close attention to how we train and support both new and the experienced educators. The teachers of Agarwal Vidya Vihar attended the following workshops of Capacity Building Program and the Prospective Resource Person Program in different cities under the banner of CBSE. A few to list are Awakened Citizen Program, Safer Smarter Schools, Learning Outcomes and Pedagogies, Art Integration. The day in the school starts by conducting informative assembly activities, and a few to list down are reciting all the prayers of school diary, thought of the day, introduction of new word with meaning, news, quiz, biography of a renowned personality, self-written poems and articles, inspirational stories, acknowledgement of achievements, and many more. Please listen very carefully about the CBSE board results
which is the asset of Agarwal Vidya Vihar. It is a matter of immense pride and pleasure to inform you that Agarwal Vidya Vihar has always produced excellent board results. In 2022, 232 students appeared in class 10 CBSE board exams and the result was 100%. The class average was 79.5% and the highest percentage secured by Akshat Agarwal was 97.6%, which was recorded as third highest in Surat district. There was one student in mathematics, one student in science and 3 students in information technology in class 10th who scored 100 on 100 marks. In 2022, 270 students in class 12th appeared in CBSE board exams and the result was again 100%. The class average recorded for science stream was 80.4% and the highest percentage secured was 94.2%. The class average recorded for commerce stream was 81.5% and the highest percentage secured was 96.6%. The class average recorded for humanities stream was 79% and the highest percentage secured by Paheli Mishra was 95.8%, which was again recorded as third highest in Surat district. Coming to 100% marks, 5 students in business studies, 1 student in economics and 6 students in psychology scored 100 on 100 marks. After 12th standard, admissions in renowned institutions, 2 students secured admission in IIT Kharagpur and IIT Kanpur, 1 student in NIT Jaipur and 1 student in VIT Vellore. 2 students secured their places in Government Medical College Surat and Government Medical College Bhavnagar. 1 student in BK Shah Medical College Vadodara and 1 student in Orenburg State Medical University, Russia. Let us feel proud looking and hearing the achievements of Agarwal Vidya Vihar. Agarwal Vidya Vihar created history by bagging the title of winner amongst 458 participating schools in the National Science Exhibition 2023 held at Gurugram. The school appreciates the students Arham Jain and Manan Agrawal of class 9th F and mentor Mr. Shani Vaidya who brought laurels to the school. The teachers of Agarwal Vidya Vihar have entered the publishing house of different school books publishers by editing the textbooks of various subjects, taking the school's name to greater heights. Please watch the program till the end as lot of hard work and innovative ideas of teachers and students have been put up to present this program. Hope you will enjoy it. Thank you and wishing you a great time ahead. My earnest request to all of you, if you really wish to express your gratitude towards the hard work of the teachers and the school, kindly stay back till vote of thanks followed by the national song. Jai Agrasen ji. Thank you. Thank you, ma'am, for painting a picture of our schools. Thank you, ma'am, for painting a picture of our school's success in your annual report. I am invigorated by the school's commitment and excited to see what we can accomplish in the upcoming years. Let's have a huge round of applause for ourselves. Study buddies and bunking pals. From textbooks to bunking. Hand in hand we stride. Teenage tales. Where chaos and laughter coincide. Homework hustlers. And class rebels. In the school grind. Where books are our guides. We are homework hustlers. And class rebels on both sides. जो दिल में दिमाग ना रखता हो वो होता है यार. जो हर समय कुछ भी बोलता हो वो होता है यार.
जो आंसू को मुस्कान बना दे वो होता है यार। जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो वो होता है यार। जो हर पल तुम्हारे साथ हो वो होता है यार। जो मुसीबत को मात दे वो होता है यार। रिश्ते बनते हैं आंसुओं से, खून से, एक दूसरे के प्रति जज्बातों के जुनून से। रेशम से मुलायम फूलों के पराग जैसे को नाजुक रिश्ते, जीवित रिश्ते, मर्यादित सुमधुर रिश्ते। सबको सिखाते इंसानियत का पाठ, सबको सिखाते इंसानियत का पाठ, अपने पराये में कभी नहीं पड़ने देते गांठ। लाती है संयम, अपनापन, आत्मीयता, इसी से तो कायम है हमारी भारतीयता, इसी से तो कायम है हमारी भारतीयता। May I now request Principal Ma'am to escort the Chief Guest, Srimati Shalini Ji Agarwal, IAS Municipal Commissioner of Surat Municipal Corporation, on the stage, along with Shri Subhas Ji Bansal, President, Shri Sanjay Kumar Ji Saravgi, Vice President, Shri Shyam Sundar Ji Agarwal, Immediate Past President, Shri Vinay Ji Agarwal, Secretary, Shri Anil Kumar Ji Gupta, Treasurer, Shri Subhas Ji Patodia, Chairman School Management Committee, Shri Arjun Das Ji Agarwal, Chairman New School Project Committee, Shri Om Prakash Ji Jhunjhunwala, Joint Treasurer, Shri Narendra Prakash Ji Jindal, Joint Secretary, Shri Mohan Ji Gupta, Chairman College Management Committee, Shri Anand Kumar Ji Agarwal, Chairman College Management Committee and Director, sir. pleasure in welcoming and expressing the gratitude with an exquisite memento that encapsulates the essence of this special occasion. We may take an opportunity to request Shri Anilji Gupta, Treasurer of Agrawal Samaj Vidya Vihar Trust, to felicitate Srimati Shalini Ji Agrawal, IAS, Municipal Commissioner of Surat Municipal Corporation. Thank you, sir. It is an honor to have with us the epitome of leadership and vision, Shri Subhas Ji Bansal, President, Agrawal Samaj Vidya Vihar Trust. His unwavering commitment and dedication have been instrumental in steering our institution to the new heights of excellence. With great respect and admiration, I would like to invite Shri Subhas Ji Bansal to address the gathering. Thank you, sir.
आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी अग्रवाल आईएएस, कमिश्नर सूरत महानगर पालिका एवं मंचस्थ अन्य सभी विशिष्ट जन, अग्रवाल विद्या विहार स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय के एनुअल डे पर आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आज का दिन सिर्फ जश्न और उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जब हम अपने छात्र छात्राओं एवं स्कूल द्वारा गत एक वर्ष में अर्जित उपलब्धियों का जश्न मना रहे हैं, ताकि भविष्य के प्रयासों में ऊर्जा एवं दिशा प्राप्त हो सके। आज के समारोह और सेलिब्रेशन के असली हकदार हमारे छात्र छात्राएं हैं। मैं उपस्थित सभी छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता को दिल से अभिवादन करता हूं। साथ ही विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं अन्य कर्मियों को भी प्रति भी सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं। बच्चे किसी भी समाज के राष्ट्र का भविष्य होते हैं। शिक्षा के नींव को मजबूत करने से उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। एक सशक्त समाज या राष्ट्र के लिए उपयोगी होता है। इसी क्रम में ट्रस्ट प्रबंधन द्वारा शहर के डिंडोली विस्तार में अत्याधुनिक सुविधा से युक्त एक नए शिक्षा संकुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो अगले सत्र 2024-25 से प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार हमारी शिक्षा संबंधित समाज सेवा का कार्य निरंतर गतिमान रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जय अग्रसेन, जय अग्रवाल, जय भारत। Thank you, sir, for your valuable words. May we request Mr. Sandeep Ghosh, Headmaster of Middle School, to familiarize our Honorable Chief Guest, Srimati Shalini Ji Agrawal, IAS, Municipal Commissioner of Surat Municipal Corporation. Good evening, everyone. It's my great honor and privilege to welcome you all to this event. I would like to start my speech with a line to all the women present here. There is no limit to what we, as a woman, can accomplish. This was the line given by Michelle Obama. I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Srimati Shalini Agrawal, IAS Municipal Commissioner of Surat, who graciously accepted our invitation to be with us this evening. Shalini ma'am is an Indian bureaucrat and the Municipal Corporation of Surat, a major city in the state of Gujarat. She assumed Surat office in April 2021 and has been serving as a key administrative figure in the city ever since. She is known for her expertise in urban planning, administration and governance. She holds a bachelor degree in civil engineering and has acquired various professional certification and training in areas such as urban infrastructure development, disaster management and public administration. Before her appointment as Surat Municipal Commissioner, she held several notable positions in government sector. As the Municipal Commissioner of Surat, she is responsible for overseeing the overall administration of the city. She focuses on urban planning, infrastructure development, public health initiatives, solid waste management, water supply, and other essential services to ensure the well-being and progress of the city and its residents. With her dynamic leadership, immense knowledge, and commitment to the development of Surat, she is playing a crucial role in shaping the future of the city and making it a vibrant and sustainable urban center. Ma'am, we are honored to have you as the chief guest for this evening. I am certain that all the parents here are also moved and assuredly want their children to be like you. Thank you one and all. Thank you, sir. Our chief guest for this evening is Srimati Shalini Ji Agrawal, IAS Municipal Commissioner of Surat Municipal Corporation, who graciously accepted our invitation to be with us this evening. She is a remarkable individual and a true inspiration who has achieved great excellence in her field of expertise. May we take this as an opportunity to request Srimati Shalini Ji to address the gathering with her words of wisdom and encouragement, which will undoubtedly motivate all of us. Ma'am, please.
on the beautiful program of annual function, Rishte Eternal Bonds of Togetherness. The name itself is so beautiful. So let me congratulate the organizers for putting the word so beautifully for this program. The dignitaries on the dais, Chavi Ravi ji, Principal of Agrawal Vidya Mandir, Subhash ji Bansal, Director, Sanjay Bhai Saragvi, Vice President, Shyam ji Agrawal, Rakesh ji Kansal, Vinay Agrawal, Anil Gupta, the Treasurer and Financier, Narinder Prakash Jindal, Om Prakash Junjunwala ji, Subhash Patodia, Arjun Das Agrawal, the Director Mr. Hemant Kumar Sharma. I like the team, it's a combination of young and old people. So APJ Abdul Kalam used to say, there are two kinds of people, young and experienced. So you have got the combination of both. So congratulations to the team sitting on the dais. All the dignitaries present here in this auditorium, students of Agrawal Vidya Vihar, parents of students who are studying in the school, and ladies and gentlemen. Let me first congratulate the team of Agrawal Vidya Vihar for putting up a prominent and reputed school and college in Surat city, and I think that education is one of the most important sector in India on which the whole country is marching ahead in the whole world. The achievements which were mentioned here in the presentation of principal, I would like to congratulate the teachers, the team of Agrawal Vidya Mandir, who are working hard on students, and also to students and their parents who are also working hard along with the team. And congratulations for the new school which we are opening in a lower income group area, so it will benefit one of the lowest strata of people, and it will give them an opportunity to come forward in their life. भाषण अच्छा लगता है किसी बच्चे को? नहीं अच्छा लगता ना, तो भाषण नहीं करेंगे। इंटरेक्शन अच्छा लगता है, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछना। यहाँ से बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो चलो एक दो क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं, पूछे? सिंपल से क्वेश्चंस होंगे, साइंस पे नहीं होंगे, मैथ्स पे नहीं होंगे। किसको खेलना अच्छा लगता है? घूमना किसको अच्छा लगता है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, वो किसको अच्छा लगता है? अच्छा, बर्गर किसको अच्छा लगता है? आइसक्रीम किसको अच्छी लगती है? पिज्जा किसको अच्छा लगता है? सरगवे की सब्जी किसको अच्छी लगती है? इन भैया को अच्छी लगती है। देखो, आप अपना फेस तो दिखाओ सबको, एक ही हो आप पूरे इस ऑडियंस में। स्प्राउट्स किसको अच्छे लगते हैं? अच्छा, स्प्राउट्स अच्छे लगते हैं। मक्के की रोटी कितने लोगों को पसंद है? बाजरे की रोटी,
दूध पीना मतलब विदाउट कॉर्नफ्लेक्स, विदाउट बॉर्मिटा, प्लेन वाइट मिल्क कितनों को पसंद है? ओके, तो एक बहुत अच्छा सा कोट देती हूँ सब बच्चों को, याद रखोगे? हाँ, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी, वी शुड take care of our body because it is the place where we have to live forever. तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है? बॉडी का, क्योंकि आपके घर, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशन वो सब तो चेंज होता रहेगा, बॉडी चेंज होगी क्या? उसमें तो पूरा ज़िंदगी भर रहना है आपको, तो सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखना है? वेरी गुड। अब बॉडी का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए? जंक फूड खाना चाहिए या न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए? दो तरह का फूड है, एक तो जो हमें अच्छा लगे, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, वॉलनट ब्राउनी विथ चॉकलेट सॉस, और एक होता है सरगवे की सब्जी, दाल, खिचड़ी। तो क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? न्यूट्रिशियस फूड। तो डिफरेंस है ना दोनों में। न्यूट्रिशियस फूड खाओगे तो क्या होगा? एनर्जी मिलेगी और बॉडी अच्छे से बिल्ट होगी। तो इसलिए जंक फूड खाओ, बट कितना खाना चाहिए? लेस खाना चाहिए और कभी कभी खाना चाहिए, वंस इन अ वाइल। और हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए और दूध ज़रूर से पीना चाहिए। फूड के साथ में दूसरी क्या चीज़ ज़रूरी है? एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। कितने लोगों को इंडोर गेम्स पसंद हैं और कितने लोगों को आउटडोर गेम्स पसंद हैं? दोनों पसंद हैं। आउटडोर ज़्यादा करना चाहिए, इंडोर ज़्यादा करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? फिजिकल एक्टिविटी होगी। अच्छा, मैं एक और तीसरा तरह का गेम बताती हूँ। मोबाइल पे गेम खेलना, वो भी तो गेम हुआ। मोबाइल पे गेम खेलना भी तो गेम हुआ ना। तो आप बोलोगे कि आज कमिश्नर मैडम आए थे घर पे जाके, जिनके पेरेंट्स नहीं आए, मम्मा उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा गेम खेलना चाहिए, तो आपका मोबाइल दे दो ना, मेरे को मोबाइल गेम खेलना है। तो मोबाइल गेम खेलना चाहिए या आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? कितना घंटा मिनिमम खेलना चाहिए? 1 आवर। फिर ऐसा ना हो कि घर पे जाके बोलो आज कमिश्नर मैडम आए थे, बोले आउटडोर खेलना है, तो मम्मा मैं जा रहा हूँ, और 6-7 घंटे तक फिर आप आउटडोर ही खेल रहे हो। तो आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए और मिनिमम 1 घंटे खेलना चाहिए, ठीक है? अब गेम के ऊपर बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगी, मदर्स होती हैं, सुबह से शाम तक घर का काम, बच्चों का काम, हस्बैंड का काम, फैमिली का काम, जॉइंट फैमिली है तो और भी काम, बाज़ार का काम, बहुत सारे काम होते हैं सुबह से लेके शाम तक, होते हैं ना? बच्चों को पता है ना, होते हैं ना? फादर्स हैं तो काम करते हैं बाहर जाके, ऑफिस में, दुकान पे। तो घर पे जब सब इकट्ठे होते हैं ना तो बहुत थके हुए से होते हैं। अब बच्चे उनको परेशान करते हैं तो क्या करते हैं पेरेंट्स? डांटते तो हैं, वो पहले ज़माने में होता था। हमारे ज़माने में डांट भी पड़ती थी और लकड़ी भी पड़ती थी, अब वो नहीं होता है। अब मोबाइल पकड़ा देते हैं पेरेंट्स। क्या करते हैं? बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि ये लो और आराम से खेलो। मेरा पेरेंट्स को बोलना है कि ये जो मोबाइल बच्चों को दिया जा रहा है ना, ये इनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देगा। और जो शुरुआत होती है घर पे मोबाइल देने की, वो बच्चा लेता नहीं है, पेरेंट्स उसको आगे से मोबाइल देते हैं।
और एक बार आपने मोबाइल दे दिया और उसको मोबाइल का चस्का लग गया तो वो अपने एक अलग ही वर्ल्ड में चला जाएगा। अब व्हाट्सएप कितने लोगों को पता है? फेसबुक कितनों को पता है? इंस्टाग्राम कितनों को पता है? हार्वर्ड की एक वेबसाइट है जिस पे क्विज होती हैं, वो कितनों को पता है? अब ये तो सब गलत हाथ खड़े हो रखे हैं, मैं फिर पूछूंगी गलत आंसर दोगे तो। इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? या जो जनरल नॉलेज की क्विज होती है वो कितने बच्चे स्कूल के बाद में मोबाइल पे करते हैं? कम बच्चे करते हैं ना, तो ज़्यादातर बच्चे क्या देख रहे होते हैं? अच्छा बच्चों बताओ क्या क्या पसंद है मोबाइल में? व्हाट्सएप तो बेस्ट होता होगा ना? तो एक बच्चा खड़े होके बता, इतने सब में नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से बताओ, बोलो। यूट्यूब, वेरी गुड। यूट्यूब पे क्या देखते हो? हाँ, कौन सा भाई? बायोलॉजी वीडियोस। अरे यार तुम रहने दो, दूसरे बच्चे बताओ बायोलॉजी वीडियो देख रहे हो? हाँ, वीडियो गेमिंग। उसको माइक दो, छोटे से बच्चे को माइक दो। अच्छा, बायोलॉजी कितने लोग पढ़ते हैं वीडियो पे? बताना मुझे जरा हाथ उठा के। GTV गेमिंग, मोबाइल गेमिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब शॉर्ट आई लव वेरी मच। यू लव वेरी मच। और तुम उन यूट्यूब शॉर्ट्स को पसंद करते हो ना, इसलिए उनकी दुकान भी बहुत अच्छे से चल रही है। और वो क्या दिखाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे? अच्छा चलो मुझे थीम बताओ, क्या दिखाते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे? गेमिंग स्किल्स। गेमिंग स्किल्स। कौन सी गेमिंग स्किल्स? लाइक GTV वीडियो। हाँ, लाइक GTV गेमिंग मेकिंग बाय टेक्नो गेमर्स। ओके, मतलब ऑनलाइन ऊपर, ऑनलाइन पे जितने गेम्स हैं वो सिखाते हैं, है ना? फिजिकल वाले नहीं, आउटडोर वाले नहीं, है ना? ऑनलाइन वाले सिखाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या पसंद है यूट्यूब के अलावा? बस। कौन सा वाला? मैम फुटबॉल। फुटबॉल फुटबॉल तो तुम कभी कभी देख लेते होंगे, इससे अच्छा खेल लोगे तो अच्छा रहेगा देखने की जगह। हाँ, उसको माइक दो, तुम्हारा नाम भी बोलते जाओ भाई साथ में। उस छोटे बच्चे के लिए ताली तो बजाओ, इतने लोगों के सामने खड़े होके वो जवाब दे। खुश अग्रवाल। खुश अग्रवाल। ऊपर वालों को ताली के साथ में बोलना भी, एक माइक ऊपर भी पहुंचा दो। बताओ उसको दो। फ्री फायर। कौन सा? फ्री फायर। यार मैंने तो सुना नहीं, उसमें क्या होता है? सर्च कर लो प्ले स्टोर पे। अच्छा ओके, मेरे को तो आता नहीं है सर्च करना प्ले स्टोर पे, तुम सिखा दो। गेम है, गेम। अच्छा गेम है, ओके। वीडियो गेम है, वीडियो गेम है ना? मोबाइल गेम है, ऑनलाइन। अच्छा ऑनलाइन गेम है, ओके। अच्छा बड़े बच्चों में से कोई बताओ, मोबाइल पे क्या देखते हो? वो नहीं देखते हो कोरिया के अलग अलग से वो मुंह बनाते हैं और अलग अलग से वो वीडियोस बनाते हैं, जापानीज लोग अलग अलग से वीडियोस बनाते हैं। और क्या देखते हो? BTS। BTS वो क्या होता है? आप में से किसी ने सुना है BTS? आप लोग को नहीं लगता आपको एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए सब बच्चों से मोबाइल के बारे में? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं कमिश्नर होके मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं पता हैं। अच्छा BTS, उसमें क्या होता है? साउथ कोरिया का टॉप बैंड। वही मैं बोल रही थी, कोरिया का कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। और उसमें क्या सिखाते हैं? बड़ा बड़ा सा पिज्ज़ा पता नहीं कैसे बना दिया और उसको सब लोग, एक ही लड़की मिलके पूरा पिज्ज़ा खा गई। और क्या बताते हैं उसमें साउथ कोरिया के? उसमें सिंगर है।
सिंगर है, ओके वेरी गुड। चलो और क्या देखते हैं बच्चे मोबाइल पे? हाँ गेम, वो तो हो गया। गेम के अलावा और क्या देखते हो? हाँ इंस्टाग्राम। उसको छोटी सी बच्ची को माइक दो। हाँ पहले उसको बुलाओ, बोलो क्या देखते हो? मेरा नाम विधि बिहानी है। यूट्यूब पे ब्लैक पिंक देखती हूँ। ब्लैक पिंक वो क्या होता है? वो भी कोरिया का एक बैंड है। अच्छा वो क्या करते हैं उसमें? उसमें डांस करते हैं, सॉन्ग गाते हैं। सॉन्ग समझ में आता है? यस। कोरियन लैंग्वेज समझ में आ जाती है? यस। वो कोरियन लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलते हैं? कोरियन में। तो आपको कोरियन समझ में आ जाती है? यस। ओके वेरी गुड। मैम मैं कार वीडियोस देखता हूँ, लाइक फ्लाइट गेमिंग एंड फ्रॉस्टबाइट गेमिंग। अच्छा फ्लाइट गेमिंग और दूसरा क्या बोले? मैम फ्रॉस्टबाइट गेमिंग। फ्लोस बाइक मतलब? फ्रॉस। अच्छा फ्रोज बाइक। यस मैम। देखो मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। अच्छा उसमें क्या करते हो? मैम उसमें GTA 5 की वीडियोस दिखाते हैं। अच्छा ओके। पेरेंट्स ने कभी पूछे ये क्वेश्चंस बच्चे क्या देख रहे हैं? पूछे होते तो इन सबको यहाँ बैठे वाले सबको पता होता कि ये क्या बोल रहे हैं। और इसके अलावा गेम्स के अलावा और क्या देखते हो? लास्ट क्वेश्चन है बस ये। गेम्स मत बताना, गेम्स के हाँ उसको उस बच्ची को दो। हाय मेरा नाम माही शाह है और मैं अपने धर्म का देखती हूँ। क्या देखते हो? यूट्यूब पे मैं अपने जैन वीडियो देखती हूँ, सॉन्ग। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसमें क्या संदेश देते हैं जैन लोग का? 2 प्रिंसिपल्स होते हैं जैन के, क्या 2 प्रिंसिपल्स? मैं नौकार मंत्र सुनती हूँ जो हमारे जैनों का मेन चीज़ है, और मेरे को है ना एक सिंगर्स पसंद है जैन के, तो उनके मैं गाने सुनती हूँ। हाँ जैन क्या बोलते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। Yes. क्या बोलते हैं? सच बोलना चाहिए और कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस। तुम लोग तो करते होंगे आपस में, धक्का दे देते होंगे, करते होंगे ना? थोड़ा सा वो कर रहा है थोड़ा सा। हाँ अच्छा पेरेंट्स के लिए अब मैं बोलना चाहूँगी, ये जो बच्चों ने इतनी सारी चीज़ें बताई, मोबाइल पे गेम्स देखते हैं, साउथ कोरियन बैंड सुनते हैं, आपको लगता है कि इन सब से इनका फ्यूचर बनेगा या इन सब से इनकी पर्सनालिटी बनेगी? कोई भी एक पेरेंट मुझे जवाब दे। बच्चों ने इतने सारे जवाब दिए, कोई एक मदर मुझे जवाब दे, बताइए। उनको माइक दो। No, they are not going right. नहीं है ना? Yes. सब मानते हैं, सारे पेरेंट्स मानते हैं कि they are not going right. Yes. और बच्चों से एक प्रश्न पूछती हूँ, जब आप घर में घूम रहे होते हैं तब आपके पेरेंट्स व्हाट्सएप पे लगे होते हैं तो आपको अच्छा लगता है? No. तो पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों का मोबाइल देखना, और बच्चों का भी अच्छा नहीं लग रहा मोबाइल देखना, तो हम ऐसे काम ही क्यों कर रहे हैं जिससे हमारा भविष्य कहीं जा नहीं रहा है? आपको बहुत छोटे, थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर गुड नेम? It's रुचि ढींगड़ा। वेरी गुड, थैंक यू। छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स देती हूँ। छोटा सा बच्चा होता है 1 साल का, 1.5 साल का, मदर फेडअप हो चुकी है सुबह से लेके शाम तक बच्चे को, अब उसको थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चाहिए, और बच्चा जिद पे जिद किए जा रहा है गोदी में आने के लिए, खेलने के लिए, तो मदर्स क्या करेंगी? मोबाइल पकड़ा देंगे। दूसरा इंटरेस्टिंग है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है मेरा, तो आजकल पता नहीं उसको भूख ही नहीं लगती है, तो उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाना है। अब ज़बरदस्ती खाना वो कैसे खाएगा? आप तो बोल बोल के थक गए हो पूरा सुबह से लेके शाम तक, फिर भी खाना नहीं खा रहा है, तो आप क्या करोगे? मैं तेरे को मोबाइल देती हूँ, मोबाइल देख, और मोबाइल देखते देखते आपने उसका पेट ठूस दिया। अब उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, उसको कितना खाना, किस प्रोपोर्शन में खाना है उसको पता ही नहीं है। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? स्वाद के लिए और
न्यूट्रिशन के लिए। हम टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं तो खाने पे फोकस कर पाएंगे? टीवी पे फोकस करोगे या खाने पे फोकस करोगे? मोबाइल देखते हुए खाना खा रहे हो तो मोबाइल पे फोकस करोगे या खाने पे फोकस करोगे? ओवर ईटिंग होगा कि नहीं होगा आपका? और दूसरा, खाने का स्वाद पता चलेगा, नमक कम है, मिर्ची कम है, हाँ अच्छा है कि नहीं है, पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बॉडी के लिए? न्यूट्रिशन। और जब वो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? आपका दिमाग कहाँ पर है? टीवी और मोबाइल में। तो वो खाना आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देगा? और आपने खाना तो एंजॉय नहीं किया, जिसके लिए आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मम्मा इतना अच्छा अच्छा न्यूट्रिशियस खाना बना रही है और वो हम लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। कितनी मदर्स को बच्चे मोबाइल देखते हुए बोलते हैं कि मम्मा आज तो आपने बड़ा अच्छा सा सैंडविच बनाया है, मोबाइल देखते हुए। और मोबाइल यदि नहीं देख रहे हैं तो कितने बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आज तो आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया है। आप ध्यान रखिएगा, मैं ये जो क्वेश्चंस आपको थ्रो कर रही हूँ, इसलिए बच्चों से ज़्यादा जो हम बच्चों को मोबाइल की तरफ ले जा रहे हैं उसमें ज़्यादा योगदान पेरेंट्स का है। अब आपने 1 साल के बच्चे से लेके 10 साल तक जब तक वो हो रहा है आप उसको बार बार मोबाइल दिए जा रहे हो, और उसके बाद में जब बच्चा टीनेज में आ जाता है, अब टीनेज वाले के कोई पेरेंट्स हैं? 11-12 वालों के हैं कोई पेरेंट्स? हैं 11-12 वालों के। आपसे मैं पूछती हूँ, 11-12 में बच्चा आ गया, फिर आप कहते हो हमारा तो बच्चा सुनता ही नहीं, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो नींव किसने डाली? पेरेंट्स ने डाली है। मैं हाथ जोड़ के पेरेंट्स को विनती करती हूँ कि ये जो हमारा मोबाइल कल्चर हम बच्चों को दे रहे हैं, हम अपने हाथों से बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं, एक 4th में और एक 3rd में, और मैं दिन रात काम करती हूँ, छुट्टी वाले दिन भी काम करती हूँ। मैंने आज तक अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। और जब मेरे बच्चे हुए थे तब मैं फील्ड में थी, कलेक्टर थी मैं, दोनों छोटे छोटे से बच्चे थे, पर मैं रात को 10 बजे भी आऊँगी, कितना भी बच्चा परेशान कर रहा है, मैंने कभी उनको मोबाइल नहीं दिया। मेरी मदर्स से रिक्वेस्ट है, आज से बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दीजिए। और बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, बच्चों को मैं मैसेज दूंगी कि आपको जो अच्छा जीवन बिताना है तो मोबाइल से दूर रहो। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम देखते हो ना, तो आपको क्या लगता है, अरे ये तो आज वहाँ घूमने गया, उसने तो आज वो, मैं मदर्स के लिए भी बोलूँगी ये वाली बात। आप जब व्हाट्सअप देखते हो, फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, तो क्या देखते हो? जो दुखी है उसको देखते हो या जो मज़े कर रहा है उसको देखते हो? जो मज़े कर रहा है उसको देखते हो। दुखी आदमी को कौन देखेगा? अब आप उसमें फेसबुक पे, अरे ये तो दुबई घूमने गई है, अरे इसने तो कितनी बढ़िया ड्रेस पहनी है, अरे ये तो क्रूज में है, तो आप उसको देख देख के आप घर में बैठे बैठे दुखी हो रहे हो। तो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन कैसे आ रहा है? आपको तो किसी ने घर में बोला नहीं कि आपके पास में ये नहीं है, आपके पास में वो नहीं है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे वो लोग मज़े कर रहे हैं और आप उनको देख देख के दुखी हो रहे हो। वो लड़की कुछ बोलना चाहती है, बताओ। जब हम स्टूडेंट थे मैम, तो हम लोग के कैलेंडर्स में सब कुछ आता था, बट जब से ये कोरोना काल आया है सारे स्कूल वालों ने मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे सब चालू कर दिया है। अभी बच्चों को अगर हम मोबाइल नहीं देते हैं तो वो हमसे कहते हैं हमारा काम छूट गया। तो उसमें हम क्या करें बताइए? हमारी मजबूरी हो गई है आज के टाइम पे देने में। मैं सॉल्यूशन दे देती हूँ आपको मजबूरी का। यस मैम। उन्होंने व्हाट्सएप पे वो 3-4 चीज़ें भेजते होंगे। एक तो उन्होंने क्या पढ़ाया या क्या होमवर्क दिया, एक दूसरा उनके स्कूल में कोई प्रोग्राम है और स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ें भेजते होंगे।
और तीसरा उनको कुछ आपको कम्युनिकेट करना है कि भाई हमारा ये हॉलीडे है, इस वक्त एग्ज़ाम्स हैं या ये हैं, इसी तरह की चीज़ें आती होंगी। ठीक है, अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप पढ़ के बच्चों को बता दीजिए, उसमें कुछ इश्यू है यदि आप पढ़ के बता दें बच्चों को तो, या फिर दूसरा आपके सामने बच्चे को बिठा लो, देख ये मोबाइल है, कॉपी पेन लेके बैठ, इसमें जो आया है नोट कर ले, 10 मिनट बाद में मुझे मोबाइल दे देना। दो ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको। और कुछ मूंझवण है तो पूछ लो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि सबके घर में यदि कंप्यूटर प्रिंटर्स हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन है, प्रिंट निकाल के दे दीजिए बच्चे को यदि प्रिंटर है तो। और आईपैड प्रमोट मत करिए, कॉपी पेन। आजकल के बच्चे लिखना भूल गए हैं, कॉपी पेन जितना देंगे उतना उनकी हैंड राइटिंग स्किल्स और हैंड स्किल्स अच्छी होंगी। तो आज मैंने जो फर्स्ट मैसेज दिया है वो दोनों को दिया है, पेरेंट्स को भी दिया है और बच्चों को भी दिया है मोबाइल के लिए। न्यूट्रिशन, फर्स्ट मैसेज क्या था? न्यूट्रिशन। सेकंड मैसेज क्या था? आउटडोर एक्टिविटी। और आउटडोर एक्टिविटी का एक पार्ट है डोंट टच मोबाइल। अब थर्ड मैसेज, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? क्या करोगे पढ़ के? नौकरियां तो मिलती नहीं है, क्या करोगे बताओ? हाँ, तो सूरत वालों को नौकरियां कोई कहाँ ज़रूरत है? तुम लोग तो बिजनेस ही बहुत अच्छे से करते हो, कर सकते हो ना बिजनेस। हाँ, और जो थोड़े बहुत पढ़ लिए वो तो और भी अच्छा बिजनेस कर लेंगे यहाँ पे। तो पढ़ना क्यों ज़रूरी है बताओ? अच्छा, किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा है? अरे वाह। किसी को इंजीनियर बनने की इच्छा है? पुलिस में कोई जाना चाहता है? कलेक्टर कमिश्नर कोई बनना चाहता है? बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। अच्छा, जीवन में कोई भी काम अच्छे से करना हो तो पढ़ाई, आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं तो दूसरे लोग क्या करेंगे? आपको बेवकूफ़ बना देंगे। क्या करेंगे? तो इसलिए अभी ये जो आपका टाइम है उसमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब रटना चाहिए कि समझना चाहिए? अब टीचर समझाते हैं कि रटाते हैं? रटाते कितने? और पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि मार्क्स अच्छे लेके आना, अच्छे लेके आना मार्क्स। अब आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप क्या बोलते हो कि हमारा तो लक अच्छा नहीं था, आज पेपर बिगड़ गया, बोलते हो? कितने बच्चे बोलते हैं कि हमारा तो लक अच्छा नहीं था इसलिए पेपर बिगड़ गया? हाथ खड़ा करें। अच्छा, पेरेंट्स से मैं पूछना चाहूँगी, कितने लोग भाग्य में विश्वास रखते हैं कि हमारे तो भाग्य में था, इतना मिला, नहीं था तो नहीं मिला? कितने लोग रखते हैं? कोई नहीं रखता। देखो, पेरेंट्स जो है वो बोल नहीं रहे हैं। सफलता कब मिलती है? जब मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है। आइंस्टीन का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? आइंस्टीन का एक कोट दूं आपको, अच्छे से याद रखना। सक्सेस इज 99% perspiration and 1% inspiration। perspiration मतलब पसीना आता है उसको क्या बोलते हैं? परसेवाने शू कहो छो? परस्पिरेशन। और पसीना कब आता है? जब आप मेहनत करते हो। तो सक्सेस में 99% किसका योगदान हुआ? मेहनत का। और 1% किसका योगदान हुआ? इंस्पिरेशन मतलब भाग्य। तो
जो 99% पे फोकस कर रहा है वो जीतेगा या जो 1% पे फोकस कर रहा है वो जीतेगा? अब आपका भाग्य कहाँ लिखा होता है? ये सब पेरेंट्स बोलते होंगे ना हाथों की लकीरों में। चलो सब ऊपर करो हाथ, हाथ की लकीरें देखो सब अपनी अपनी, और वो आपका क्या है? भाग्य। अब सब हाथ ऊपर करो, अब उसका मुट्ठी बना दो। आपका भाग्य किसकी मुट्ठी में हुआ? आपकी मुट्ठी में है। आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में है। इसका क्या मतलब हुआ? आप जैसा चाहते हो वैसा अपना भाग्य बना सकते हो। आपने यदि 99% मेहनत की है तो भाग्य का रोल सिर्फ 1% है। भाग्य के सहारे बैठे रहोगे और काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो असफलता ही मिलेगी। इसलिए आज के बाद में सब लोग मेहनत पे फोकस करना। किस पे फोकस करोगे? अब मेहनत तो आपने कर ली पूरे साल भर, अब जब एग्जाम में पेपर आया और आपके हाथ धूजने लग गए, आपको शिवरिंग होने लग गई, आप घबरा गए, तो क्या होगा? पूरी मेहनत कहाँ चली गई? पानी में। तो मेहनत के साथ में क्या जरूरी है? आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या जरूरी है? अपने आप पे विश्वास रखो। दूसरा क्या है, दूसरे में कितना इंटेलिजेंस है, दूसरा कितना मेहनती है, दूसरा कितना आईक्यू उसका अच्छा है, उसको मत देखो। एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो? उन्होंने कहा था कि जो वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स हैं या जो वर्ल्ड के बेस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो क्लास में सबसे पीछे की बेंच पे बैठे होते हैं। और आप लोग गूगल करना, इस बात के लिए आप मोबाइल ले लेना भले, सिर्फ 5 मिनट के लिए उस पर गूगल करना और सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट देखना। देखोगे तो आपको पता चलेगा 95% जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो मीडियोकर इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। मीडियोकर मतलब सामान्य इंटेलिजेंस, बहुत हाई इंटेलिजेंस भी नहीं होता और लो भी नहीं होता, बीच का इंटेलिजेंस होता है। और ऐसे लोग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। तो आज के बाद में कोई दूसरा इंटेलिजेंट है उससे डरोगे? किस पे विश्वास रखोगे? और मैंने क्या बोला, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटेलिजेंस कैसा होता है? नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है। इसलिए आज के बाद में भूल जाना कि इसका आईक्यू ज़्यादा है, इसका आईक्यू कम है। अपने ऊपर विश्वास रखो और मेहनत करो। ये हमारा सक्सेस का मूल मंत्र है।